Hello everyone. In this video, we are going to discuss methods of capital busting, and here we will understand the payback period method of capital busting. I am Madhu Verma and welcome you all at my YouTube channel Learning Academy of Commerce, where learning and education is imparted in an easy way. If you're new to my channel, please subscribe it and press the bell icon for the new video updates. So let's understand the payback period method of capital busting. In our last video, we talked about the kinds of capital busting decisions. And here we will understand what are the different methods or techniques for capital busting, and we will understand the payback period method in detail. Capital busting is a long-term investment decision. And we have talked about the meaning, definition, process of capital busting, as well as the different kinds of capital busting decisions in the earlier videos. So I recommend you to watch the earlier videos also to understand this concept fully. So what is the need of capital busting methods? Capital busting methods की क्या नीड है कैपिटल बस्टिंग में? एक फर्म के पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होते हैं जिनमें वह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट फर्म के पास अवेलेबल फंड्स लिमिटेड है, सो फर्म को उन सभी प्रपोजल्स में एक समय में इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं है. सो फर्म को ऐसे प्रपोजल्स या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है जिनमें हाईएस्ट बेनिफिट्स फर्म को मिले. तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेते समय यह देखा जाता है कि किसी भी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, बिकॉज हायर द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रेटर द रिस्क एंड वाइस वर्सा. सो फर्म डिफरेंट कैपिटल बस्टिंग मेथड्स का यूज करती है जिसके द्वारा फर्म यह डिसाइड करती है कि किस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में फर्म को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. तो ये डिफरेंट मेथड्स कैपिटल बस्टिंग के एक फर्म को हेल्प करते हैं यह डिसाइड करने में कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है. So there are different methods of capital busting which are available. We can categorize these methods into two parts. The first one is the traditional methods and second is time adjusted method or discounted methods. So let's understand what are these methods. In the traditional methods, there are different kinds of methods. The first one is payback period method or payout or payoff method that we will understand in this video. Second one is improvement of traditional approach to payback period method. And the third one is rate of return method or accounting method. These are the traditional methods. And second category is time adjusted methods or discounted methods. So these are, the first one is net present value method, internal rate of return method, profitability index method, and terminal value method or modified IRR. We will understand all these methods in our next video or in the further upcoming videos. And in this video, we will focus upon the payback period method or payout or payoff method. So let's understand what is the payback period method or payout or payoff method. First of all, we should understand the methodology behind the payback period method. कि payback period method काम कैसे करता है, किस पर based है. So the payback, sometimes called as payout or payoff period or capital recovery method, and represents the period in which the total investment in permanent assets pays back itself. Payback जैसे कि इसके नेम से क्लियर है. So payback period method को कई बार हम payout या payoff period method भी कहते हैं, या capital recovery method means किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में या प्रपोजल में जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वह कितने टाइम पीरियड में हमें वापस मिल जाती है, उस पर बेस्ड है पे बैक पीरियड मेथड. सो यह रिप्रेजेंट करता है वह टाइम पीरियड जिसमें कि अगर हमने किसी परमानेंट असेट में, किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में जो टोटल इन्वेस्टमेंट की है, जो मनी इन्वेस्ट की है, वह उस कितने टाइम पीरियड में हमारे पास वापस आ जाती है, हमें वह रिकवर हो जाती है. इसलिए इसको कैपिटल रिकवरी मेथड भी कहा जाता है, बिकॉज द कैपिटल वी हैव इन्वेस्टेड इन द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इज recovered to us. So this method is based on the principle that every capital expenditure pays itself back within a certain period out of the additional earnings generated from the
कैपिटल असेट्स। सो ये मेथड किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर या आपने जिस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में जो मनी इन्वेस्ट की है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में, वह एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको वापस मिलती है, और जो एडिशनल साथ में आपको कुछ एडिशनल अर्निंग्स भी जनरेट होती हैं कैपिटल एसेट से। जो जितनी मनी इन्वेस्ट की है उसके साथ साथ कुछ एडिशनल अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स उस कैपिटल एसेट से जनरेट होती है। Thus, it measures the period of time for the original cost of a project to be recovered from the additional earnings of the project itself. So, ये payback period method measure करता है वह time period जिसमें कि project की original cost means जितनी money invest की है वह money, original capital और original cost of capital, साथ ही साथ जो additional earnings है, additional returns हमें उस project से मिलेंगी, वह कितने time period में recover हो जाएंगी, उस time period को यहाँ पर measure किया जाता है। Under this method, various investments are ranked according to the length of their payback period in such a manner that the investment with a shorter payback period is preferred to the one which has longer payback period. एक फर्म के पास अगर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं तब उसको डिसाइड करना होता है कि वह उनमें से किस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या प्रपोजल में मनी इन्वेस्ट करे। सो इस मेथड में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स को रैंक कर दिया जाता है किस बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ पे बैक पीरियड। मीन्स वह डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कितने टाइम पीरियड में मनी पे बैक करेंगे उसके अकॉर्डिंग, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसको पे बैक कर दिया जाता है। और वह पे बैक करने के बाद जब हम उनकी रैंकिंग, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के बाद जब उनकी रैंकिंग करते हैं, सो जिस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का शॉर्टर पे बैक पीरियड होता है, सबसे कम पे बैक पीरियड होता है, उसको प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू द प्रोजेक्ट जिसका लॉन्ग पे बैक पीरियड है। तो सबसे कम पे बैक पीरियड है मीन्स सबसे कम समय में जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मनी को रिकवर करा देता है उस प्रपोजल को सिलेक्ट कर लिया जाता है। So in case of evaluation of a single project, it is adopted if it pays back for itself within a period specified by the management, and if the project does not pay back itself within a period specified by the management, then it is rejected. So अगर एक single project है जिसमें हमें यह डिसीजन लेना है कि इस प्रोजेक्ट में हम मनी इन्वेस्ट करें या ना करें, उस समय पर फर्म कैसे डिसीजन लेती है, फर्म की मैनेजमेंट के द्वारा एक पीरियड स्पेसिफाई किया जाता है जिस टाइम पीरियड में हमें उस प्रोजेक्ट से मनी रिकवर हो जानी चाहिए। उसके बाद उस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया जाता है। अगर वह टाइम पीरियड मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किए गए टाइम पीरियड के इक्वल है या उससे कम है, तब हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर पे बैक पीरियड उस प्रोजेक्ट का उस मैनेजमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किए गए टाइम पीरियड से ज्यादा है, तब प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। So the payback period of the project, if the payback period of the project is less than or equal to the period specified by the management, then the project is approved or selected. But if the payback period of the project is more than the period specified by the management, then the project is rejected. So a shorter payback period is thought to be better than a longer payback period. So एक shorter payback period को prefer किया जाता है या consider किया जाता है कि जिस project का short payback period है, long payback period वाले project के comparatively वह project better है और उसमें investment की जाती है। Yet there is no clear rules for how short is better. So इस तरह से हम decision लेते हैं कि किस investment opportunity में हम investment करेंगे। So in the further slides, we will understand it with the help of some examples. So what is the procedure of payback period method? The step one in this in using the payback period method is calculate net earnings or profits before depreciation and after taxes. These are called annual cash flows. सबसे पहले हम एनुअल नेट अर्निंग्स कैलकुलेट करते हैं। एनुअल नेट अर्निंग्स जो कि कैलकुलेट की जाती है बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्सेस, इनको एनुअल कैश इनफ्लोज कहा जाता है। सेकेंड स्टेप में डिवाइड द इनिशियल कैश आउटले और कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बाय द एनुअल कैश इनफ्लो where the project generates constant annual cash inflows. Thus, where the project generates constant annual cash inflows, the formula for calculating the payback period is, अगर एक प्रोजेक्ट हर साल constant annual cash flows जनरेट कर रहा है, इनफ्लोज जनरेट कर रहा है इक्वल अमाउंट के, तब
किस फॉर्मूला को यूज किया जाता है पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए? द फॉर्मूला इज कैश आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज। यहाँ से हमारे पास पे बैक पीरियड कैलकुलेट हो जाता है और उस पे बैक पीरियड के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। And the third step is where the annual cash inflows or the profits before depreciation and after taxes are unequal. The payback period can be found out by adding up the cash inflows until the total is equal to the initial cash outlay of the project or original cost of the asset. यह फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया है यह यूज करते हैं जब एनुअल कैश इनफ्लोज कांस्टेंट होती है सभी टाइम पीरियड्स में। लेकिन अगर एनुअल कैश इनफ्लोज कांस्टेंट नहीं है, अनइक्वल है, तब पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने भी कैश इनफ्लोज हैं उसको हम हर साल एड अप करते रहेंगे सब्सिक्वेंट ईयर्स में। और कब तक ऐड किया जाता है? जब तक जो इनिशियल कैश आउटले के इक्वल नहीं हो जाती वे कैश इनफ्लोज का टोटल क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज, जब तक जो हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, जो हमने ओरिजिनली उस असेट में मनी इन्वेस्ट की है, उसके इक्वल नहीं हो जाती। तो जिस ईयर में वह कैश आउटले के इक्वल हो जाती है अमाउंट, वह हमारा होता है पे बैक पीरियड। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, a project costs rupees 1 lakh and yields an annual cash inflow of rupees 20,000 for 8 years. Calculate the payback period. एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट है रुपीज 1 लाख, मीन्स हमने उसमें रुपीज 1 लाख इन्वेस्ट किए हैं और एनुअल कैश इनफ्लो 20,000 है 8 इयर्स तक। यह कांस्टेंट कैश इनफ्लो है। सो कांस्टेंट कैश इनफ्लो में हम किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे पे बैक पीरियड? पे बैक पीरियड फॉर्मूला इज कैश आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज। कैश आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट कितना है यहाँ पर? दैट इज रुपीज 1 लाख। So cash outlay of the project is 1 lakh and cash inflow is 20,000. So 1 lakh divided by 20,000. So the payback period is 5 years. Let's understand it with the help of some more examples. Determine the payback period for a project which requires a cash outlay of rupees 10,000 and generates cash inflows of rupees 2,000, 4,000, 3,000, 2,000 in the first, second, third and fourth year respectively. सो यहाँ पर कैश इनफ्लोज हमें कांस्टेंट कैश इनफ्लोज नहीं दिए हुए। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस किया, उसमें कैश इनफ्लोज 20,000 थे हर साल 8 इयर्स तक, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल कैश इनफ्लोज है। तो यहाँ पर हम कैसे पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर कैश आउटले है 10,000 और कैश इनफ्लोज हर साल चेंज हो रहे हैं 4 इयर्स तक। So the total cash outlay or the cost of the project is rupees 10,000. Total cash inflow for the first 3 years. So here we will calculate कि हम यहाँ पर add on करते रहेंगे सभी cash inflows को, कब तक? जब तक हमारा amount rupees 10,000 जो original cost है project की उसके इक्वल नहीं हो जाता। तो देखिए first 3 years में cash inflows कितने हैं? First में 2,000, 2,000 plus 4,000, 4,000 in second year plus 3,000 in third year. So यहाँ पर कैश इनफ्लो कितना आया? 9,000। बट कैश आउटले कितना है? 10,000 है। सो कैश आउटले हमारा 10,000 है, इसके इक्वल अमाउंट होनी चाहिए। तो इन द नेक्स्ट ईयर द कैश इनफ्लो इज रुपीज 2,000। सो अप टू द थर्ड ईयर तक हमारी कितनी अमाउंट रिकवर हो गई है? 9,000 अमाउंट हमारी रिकवर हो चुकी है, लेकिन हमें रिकवर करने हैं रुपीज 10,000. So up to the third year, total cost is not recovered, but the total cash inflows for the 4 years is 9,000 प्लस फोर्थ ईयर में कितना कैश इनफ्लो है? फोर्थ ईयर में है रुपीज 2,000। तो उसको हम एड ऑन करते हैं यहाँ पर फोर्थ ईयर का कैश इनफ्लो, तो हमारे पास अमाउंट कितनी आती है? 11,000। 11,000 हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाती है। सो यहाँ पर ये 11,000 रुपीज 1,000 ज्यादा है किससे? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द
प्रोजेक्ट से। ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 है और अगर हम इन सभी कैश इनफ्लोज को ऐड करते हैं तो हमारे पास अमाउंट 11,000 आती है, जो कि 1,000 ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से ज्यादा है। सो पे बैक पीरियड कहाँ होगा? बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ईयर लाई करेगा, थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में पे बैक पीरियड लाई करेगा। So assuming that the cash inflows occur evenly throughout the year, the time required to recover rupees 1,000 will be, यहाँ पर हमें डिफरेंस देखना होगा कि हम हमारे पास कितना डिफरेंस है। 10,000 ओरिजिनल कॉस्ट है और 11,000 हमारे टोटल क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आती है दैट इज 11,000। तो डिफरेंस कितना है? 11,000 माइनस 10,000 दैट इज 1,000। डिवाइड करेंगे इसको, जो फोर्थ ईयर का हमारा कैश इनफ्लो है, डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 12। तो अमाउंट कितनी आती है? दैट इज 6 months। So hence payback period is 3 years and 6 months। तो यहाँ पर हमारा payback period कितना आया? 3 years 6 months means 3 years और 6 months में हमें original cost rupees 10,000 recover हो जाती है। So this is the payback period of this project। Now we can take a decision whether to invest in it or not। So let's take one more example। A project cost rupees 5 lakh and yields annually a profit of rupees 80,000 after depreciation at the rate of 12%। depreciation की rate है 12% but before tax of 50%। बिकॉज हमें यहाँ पर प्रॉफिट जो हम कैश इनफ्लोज लेते हैं पे बैक पीरियड मेथड में कैलकुलेशन के लिए, वह कौन से प्रॉफिट्स लेते हैं? प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। और यहाँ पर हमें जो 80,000 के प्रॉफिट्स गिवन है वह आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स गिवन है। सो यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट्स करनी होगी। कैलकुलेट द पे बैक पीरियड, हमें पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी विल कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। तो गिवन डेटा क्या है? यहाँ पर हमें गिवन है और कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज 5 लाख। सो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पर है, so let's take it A is the cost of the project that is rupees 5 lakh। profit before taxes, profit before taxes हमें given है rupees 80,000। 80,000 हमें given है profits before taxes। अब इन प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस को हमें एडजस्ट करना है बिकॉज हमें अमाउंट चाहिए प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। सो हमें सबसे पहले इसमें से टैक्स माइनस करना होगा। टैक्स की रेट है 50%। सो एट द रेट ऑफ 50%, सो ये बी अमाउंट मीन्स 80,000 पे हम 50% की रेट से अगर टैक्स चार्ज करते हैं तो टैक्स का अमाउंट आता है 40,000। तो 80,000 में से हम 40,000 माइनस करेंगे। D is equal profit after taxes, D is equal to B minus C, that will be rupees 40,000। अब हमें इसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना है बिकॉज हमें प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए। अब जब हम टैक्सेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं, जिन प्रॉफिट्स पे टैक्स चार्ज किया जाएगा उसमें से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस किया जा चुका होता है। इसलिए बिकॉज डेप्रिसिएशन डिडक्टिबल एक्सपेंस है, जब हम टैक्सेबल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं तो हमें अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना पड़ेगा। सो ऐड बैक द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12% की रेट गिवन है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट है प्रोजेक्ट की 5 लाख एट द रेट ऑफ 12%। सो ए मींस 5 लाख इनटू 12%। सो डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 60,000। सो यहाँ पर 60,000 का डेप्रिसिएशन है, हम यहाँ पर इसको ऐड बैक करेंगे प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट्स हमारे पास कितने बचे थे आफ्टर टैक्स? 40,000 प्लस 60,000। सो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स और एनुअल कैश इनफ्लो कितना हुआ? 1 लाख। ये हमें अभी प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स और एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए हैं। अब हम पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे। सो पे बैक पीरियड्स फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख एंड द पे बैक पीरियड इज 5 years। Let's take one more example।
when we have more than 2 projects, जब हमारे पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, तब पे बैक पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देर आर 2 projects x and y. Each project requires an investment of rupees 20,000. You are required to rank these projects according to the payback method from the following information. अब हमारे पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, हमें उनकी रैंकिंग करनी है और उसके बाद डिसीजन लेना है कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाए, किसको रिकमेंड किया जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई है, हर एक प्रोजेक्ट में इनिशियल कैश आउटले कितना है हमारा? 20,000. नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स आर गिवन in project X and Y in number of years, 5 years. In first year project X generate 1,000, Y generates 2,000, and so on. So let's understand how we will calculate the payback period. The payback period for project X is 5 years. देखिए 5 years में यह पे बैक कर रहा है हमारे ओरिजिनल कोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की। फर्स्ट ईयर में ₹1000 जनरेट होते हैं, फिर 2000, 4000, 5000 एंड 8000 अप टू 5th ईयर। सो पे बैक पीरियड फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए कितना होगा? 1000 प्लस 2000 प्लस 4000 प्लस 5000 प्लस 8000 इज इक्वल टू 20,000। ये 20,000 क्या आया हमारा? जो हमारा कैश इनफ्लोज, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज। अब देखिए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी है? 20,000 है, और यह पूरे 20,000 हमें कितने साल में रिकवर होते हैं? 5 इयर्स में हमें यहाँ पर अमाउंट रिकवर होती है। तो यहाँ पर पे बैक पीरियड कितना हुआ? 5 इयर्स। अब सेकेंड प्रोजेक्ट वाई के लिए पे बैक पीरियड कितना होगा? फर्स्ट ईयर में है 2000 कैश इनफ्लो, सेकेंड ईयर में कैश इनफ्लो प्लस 4000, थर्ड ईयर में कैश इनफ्लो कितना है? 6000, एंड in the fourth year the cash inflow is 8000. total amount is 20,000. so ये 20,000 हमें कितने टाइम पीरियड में रिकवर हो गए? फोर्थ ईयर तक ही हमें, देखिए फोर्थ ईयर तक हमें यह फुल अमाउंट रिकवर हो चुकी है प्रोजेक्ट वाई में, जबकि यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्स में हमें यह अमाउंट रिकवर होने में फुल 5 इयर्स लग जाते हैं। सो यहाँ पर किस प्रोजेक्ट को प्रेफर किया जाएगा? जिसका पे बैक पीरियड कम है। पे बैक पीरियड कम है प्रोजेक्ट वाई का, बिकॉज प्रोजेक्ट वाई हमें ओरिजिनल कॉस्ट 4 इयर्स में ही रिकवर करा देता है, तो उसके बाद जो जनरेट होते हैं वह प्रॉफिट्स होंगे। तो हेंस प्रोजेक्ट वाई शुड बी प्रेफर्ड और रैंक्ड फर्स्ट। Let's take one more example to understand this concept. X Limited is producing articles mostly by manual labor and is considering to replace it by a new machine. There are two alternative models. M and N of the new machine prepare a statement of profitability showing the payback period from the following information. X Limited अपने आर्टिकल्स मैनुअल लेबर के द्वारा प्रोड्यूस कर रही है। अब उनको डिसीजन लेना है कि उनको रिप्लेस करना है उसको एक नई मशीन से। अब उसके पास 2 अल्टरनेटिव मशीन्स के मॉडल्स अवेलेबल है, एम और एन, और उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है कि हम किस मशीन को परचेज करें। सो यहाँ पर कैसे डिसीजन लिया जाएगा? हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन्स गिवन है। फर्स्ट मशीन की एम है, एम मशीन की है 4 इयर्स और एम मशीन की है 5 इयर्स। कॉस्ट ऑफ मशीन एम की है 90,000 और एन की ₹1,80,000। एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप गिवन है, एस्टिमेटेड सेविंग्स इन डायरेक्ट वेजेस, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन। So what is the formula for payback period? Formula is initial outlay or cost of the project divided by annual cash inflows. So how we will calculate here? So first of all, we will have to calculate the annual cash inflows or net saving. How we will calculate it? हमें गिवन है सेविंग्स ड्यू टू स्क्रैप, तो एस्टिमेटेड सेविंग्स पर एनम हम कैलकुलेट करेंगे। हमें सेविंग्स ड्यू टू स्क्रैप गिवन है इस एग्जांपल में, दैट इज 5,000। एज यू कैन सी एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप गिवन है 5,000 और जो डायरेक्ट वेजेस में सेविंग्स है वह 60,000 है फर्स्ट प्रोजेक्ट में। इस तरह से मशीन एन में है 8,000 सेविंग्स इन स्क्रैप और डायरेक्ट वेजेस में सेविंग्स है 80,000। मेंटेनेंस की और सुपरविजन की कॉस्ट गिवन है, एडिशनल कॉस्ट जो हमें मेंटेनेंस सुपरविजन की बेयर करनी पड़ेगी। तो इस डाटा के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे सेविंग्स। तो सेविंग्स ड्यू टू स्क्रैप इन फर्स्ट प्रोजेक्ट इन एम मशीन 5,000 एंड सेविंग्स इन डायरेक्ट वेजेस इट इज
60,000. In N machine, the savings in scrap is 8,000 and savings in direct wages is 80,000. So total savings कितनी हुई? Machine N में 5,000 plus 60,000, 65,000, and machine N it is 88,000. 8,000 plus 80,000 is 88,000. अब cost कितनी है? Additional cost per annum. Cost of maintenance and cost of supervision given है. Machine M में है 8,000. Cost of maintenance और cost of supervision है 12,000. इस तरह से machine N में cost of maintenance कितनी है? 10,000 और cost of supervision है 18,000. So total additional cost कितनी हुई? इन दोनों को ऐड करेंगे so that will be 8,000 plus 12,000, that will be 20,000. इसी तरह से यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया जाएगा टोटल कॉस्ट के लिए 10,000 plus 18,000 divided by 28,000. तो यहाँ पर नेट सेविंग्स कितनी होंगी? टोटल सेविंग्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे. सो सेविंग्स कितनी होगी? 65,000 यहाँ पर हमारी प्रोजेक्ट एम में, मशीन एम में सेविंग्स आई थी और कॉस्ट कितनी है? 20,000. So 65,000 minus 20,000, the cost will be 45,000. Sorry, savings will be 45,000. इसी तरह से मशीन एन में कॉस्ट कितनी है? 88,000. 88,000 में से माइनस करेंगे उसकी कॉस्ट कितनी है? 28,000. So 28,000 will be subtracted from 88,000. So यहाँ पर एनुअल सेविंग और नेट सेविंग्स कितनी आई? 60,000. अब पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है. पे बैक पीरियड का फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट इनिशियल कैश आउटले डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज. और इनिशियल कैश आउटले कितना है? 90,000 है. दोनों प्रोजेक्ट्स में सेम है. तो यहाँ फर्स्ट प्रोजेक्ट में है 90,000, सेकंड प्रोजेक्ट में है 1,80,000. सो फर्स्ट प्रोजेक्ट में 90,000 डिवाइडेड बाय 40,000. 45,000 क्या है? 45,000 है हमारी नेट सेविंग्स और एनुअल कैश इनफ्लोज. तो ओरिजिनल कॉस्ट 90,000 को डिवाइड करेंगे 45,000 से. यहाँ पर पे बैक पीरियड कितना आया? 2 years. मशीन एन में कितना है ओरिजिनल कॉस्ट? एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीन 1,80,000 है. सो 1,80,000 डिवाइडेड बाय नेट सेविंग्स दैट इज 60,000 इज इक्वल टू 3 years. so, यहाँ पर पे बैक पीरियड है 3 years. सो अब हम रैंकिंग करेंगे किस बेसिस पे? पे बैक पीरियड के बेसिस पे. तो किसको रैंक किया जाएगा फर्स्ट? जिसका पे बैक पीरियड कम होगा. पे बैक पीरियड कम है मशीन एम का, so machine M will be recommended as compared to machine N because that has a shorter payback period as compared to machine N. So what here we will discuss what are the advantages of payback period method. As we have understood the concept of payback period with the help of examples, so what are the advantages which the payback period method offers to us? The first one is it is simple to understand and easy to calculate. Yes, इस मेथड में कैलकुलेशंस बहुत इजी है. हम इजीली पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे उसको डिसीजन ले सकते हैं कि किस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है. सो बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना और कैलकुलेशन भी इजी है इस मेथड में. Second one is less cost is involved due to lesser time and labor as compared to other methods of capital budgeting. Because यह मेथड इजी टू कैलकुलेट है, बहुत इजी कैलकुलेशंस है. सो बहुत कम टाइम इन्वॉल्व होता है इसकी कैलकुलेशंस में, कम लेबर की इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए कॉस्ट भी इस मेथड में कम आती है. In this method, as a project with a shorter payback period is preferred to the one having a larger payback period, so it reduces the loss through obsolescence and is more suited to the developing countries like India, which are in the process of development and modernization and have quick obsolescence. तो यह मेथड शॉर्टर पे बैक पीरियड को प्रेफर करता है. उन प्रोजेक्ट्स को प्रेफर किया जाता है जिनका पे बैक पीरियड कम है, शॉर्ट है, एज कंपेयर टू द प्रोजेक्ट जिनका प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड लॉन्ग है. तो यह जो मशीन्स अब्सोल्यूट हो जाती है उसके रिस्क को कम कर देता है, उसके लॉस को रिड्यूस कर देता है. बिकॉज एक मशीन को जितने ज्यादा टाइम पीरियड में एक मशीन हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट को रिकवर कराएगी, उसका अब्सोल्यूट होने का रिस्क उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है. बिकॉज चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, हर रोज नए नए चेंजेस होते हैं टेक्नोलॉजी में. सो कुछ टाइम पीरियड के बाद हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, वह मशीन अब्सोल्यूट हो जाए.
और हमें उसको रिप्लेस करना पड़े। सो डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पर अभी प्रोसेस चल रही है डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन की, इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं अभी डेवलप हुई है, तो वहाँ पर यह मेथड बहुत सुटेबल मेथड है। बिकॉज यह रिस्क को कम, बिकॉज अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पर कम टाइम पीरियड में मनी रिकवर हो जाती है, तो मशीन्स के एब्सोल्यूट होने का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। Due to a short-term and medium-term approach, this method is particularly suited to the firm which has shortage of cash or whose liquidity position is not particularly good. बिकॉज यहाँ पर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म अप्रोच को अडॉप्ट किया जाता है कि जिन प्रोजेक्ट्स का शॉर्ट टाइम पीरियड में वह मनी रिकवर करते हैं, हम उस प्रोजेक्ट्स को प्रेफर करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में मनी इन्वेस्ट करते हैं, उन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को अंडरटेक किया जाता है। तो यह मेथड उन फर्म्स के लिए सुटेबल है जिनकी लिक्विडिटी पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं है या शॉर्टेज ऑफ कैश रहती है। बिकॉज उन फर्म्स ने अगर एक बार मनी इन्वेस्ट की किसी प्रोजेक्ट में, तो वह चाहते हैं कि कम से कम टाइम पीरियड में मनी उनके पास वापस आ जाए, बिकॉज उनकी लिक्विडिटी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वह ओवर, बिकॉज नई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी फर्म के पास अवेलेबल होती है और फर्म को अपनी वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए और फर्दर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए भी मनी की रिक्वायरमेंट है। तो जितने ज्यादा टाइम पीरियड में अगर फर्म को मनी रिकवर होती है, उतना उसका लिक्विडिटी पोजीशन पर इफेक्ट पड़ता है। तो फर्म को अगर ऐसे पीरियड्स में फर्म मनी इन्वेस्ट करेगी जहां पर कम टाइम पीरियड में मनी रिकवर हो जाती है, तो उसकी लिक्विडिटी पोजीशन मेंटेन रहेगी। वह फर्म्स भी उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं जिनकी लिक्विडिटी पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है और शॉर्टेज ऑफ कैश रहती है, बिकॉज वहां पर उनकी जो कैश की नीड्स है वो जल्दी मीट हो जाएगी। Here we will understand what are the disadvantages of payback period. Although there are many advantages of this method, but there are some disadvantages or drawbacks also. The first one is this method ignores cash value beyond the payback period. That is, it does not take into account the cash inflows earned after the payback period, and hence the true profitability of the project cannot be correctly assessed. यह मेथड जो पे हमें कैश फ्लोज पे बैक पीरियड के बाद जनरेट होते हैं उसको इग्नोर करते हैं। हम सिर्फ वहां तक पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं जहां तक हमारी ओरिजिनल कॉस्ट रिकवर हो जाती है, लेकिन पे बैक पीरियड के बाद भी हमें कैश इनफ्लोज जनरेट होते हैं प्रोजेक्ट से, तो उनको कंसीडर नहीं किया जाता जब हम डिसीजन लेते हैं कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में मनी इन्वेस्ट करनी चाहिए। सो ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी को असेस नहीं किया जा सकता इस मेथड में। So let's understand कि कैसे किया जाता है इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू प्रोजेक्ट्स एक्स एंड वाई and each project requires an investment of ₹25,000. टू प्रोजेक्ट्स हैं एक्स एंड वाई, दोनों प्रोजेक्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट के लिए मनी रिक्वायर्ड है, कैश आउटले है, वह है 25,000। प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्सेस आर in different years. The first in case of project X, the profits are 5,000, 8,000, 12,000 and 3,000. And case of project Y, these are 4,000, 6,000, 8,000, 7, 6 and 4,000. So यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट X में जो हमने मनी इन्वेस्ट की है वह हमें कितने टाइम पीरियड के बाद पे बैक देता है? 5,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000। सो यहाँ पर हमें थर्ड ईयर तक ही मनी रिकवर हो जाती है। कितनी? 25,000 हमने मनी इन्वेस्ट की है। सो यह 25,000 हमें यहाँ पर थर्ड ईयर तक रिकवर हो जाते हैं और जो फोर्थ ईयर में हमारा एडिशनल अमाउंट जनरेट हो रहा है 3,000 का। 5,000 प्लस 8 प्लस 12,000, यहाँ पर हमारे 25,000 कंप्लीट रिकवर होंगे फर्स्ट 3 इयर्स में ही। प्रोजेक्ट वाई में देखिए, प्रोजेक्ट वाई में कम मनी रिकवर होती है, 4,000 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 7। यह हमारे कितने टाइम पीरियड में मनी रिकवर करा देता है? 4 इयर्स में। 4 इयर्स में हमें मनी रिकवर हो जाती है और उसके बाद ये 6,000 और 4,000 फिफ्थ और 6 इयर्स में एडिशनल कैश आउटले जनरेट होता है, सॉरी एडिशनल कैश इनफ्लो जनरेट होता है। ये हमारे पास एडिशनल अर्निंग्स जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्रोजेक्ट एक्स
हमें सिर्फ 3000 अर्निंग्स दे रहा है पे बैक पीरियड के बाद, जबकि प्रोजेक्ट वाई कितनी अर्निंग्स दे रहा है पे बैक पीरियड के बाद? प्रोजेक्ट वाई दे रहा है 10,000 अर्निंग्स, 6,000 प्लस 4,000, हमें यह 10,000 अर्निंग्स जनरेट करा रहा है पे बैक पीरियड के बाद। लेकिन हम किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे अगर हम पे बैक पीरियड के बेसिस पे एक्सेप्ट करेंगे? प्रोजेक्ट एक्स को, बिकॉज ये हमें 3 इयर्स में ही पे बैक दे देता है, तो इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन जो एडिशनल अर्निंग्स पे बैक पीरियड के बाद जनरेट हुई उसको कंसीडर नहीं किया गया, जबकि प्रोजेक्ट वाई में एडिशनल अर्निंग्स पे बैक पीरियड के बाद ज्यादा जनरेट होती हैं। सो इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट टू इग्नोर द अर्निंग्स आफ्टर द पे बैक पीरियड when these are substantial। जब हमें बहुत ज्यादा अर्निंग्स जनरेट होती है पे बैक पीरियड के बाद, तो उनको भी कंसीडर किया जाना चाहिए, जो कि इस मेथड में कंसीडर नहीं किया जाता। Another drawback of this method is this method ignores the time value of money and does not consider the magnitude and timing of cash inflows. It treats all cash flows as equal, though they occur in different periods. It ignores the fact that cash received today is more important than the same amount of cash received after 3 years. यह भी एक ड्रॉबैक है इस मेथड की कि इस मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कि जो कैश हमें आज रिसीव हुआ है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी बजाय जो हमें कुछ टाइम पीरियड के बाद रिसीव होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। फर्स्ट देखिए, इसमें प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 हमारे पास है। डिफरेंट ईयर्स में जो कैश इनफ्लोज हमें जनरेट होते हैं वह गिवन है। सो इन प्रोजेक्ट 1 10,000 प्लस 8,000 7 6 एंड 4,000 ये हमें जनरेट होती है, तो टोटल अमाउंट 35,000 है प्रोजेक्ट 1 में। प्रोजेक्ट 2 में 4 6 7 8 एंड 10,000, टोटल अमाउंट इज 35,000। सो यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैसे कंसीडर नहीं किया जा रहा? पे बैक पीरियड मेथड के अकॉर्डिंग दोनों प्रोजेक्ट्स को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, बिकॉज दोनों का जो कैश इनफ्लोज है वह 5 इयर्स में है। दोनों प्रोजेक्ट्स हमें 5 इयर्स में मनी रिकवर करा रहे हैं 35,000 की। पे बैक पीरियड दोनों का 5 इयर्स है, कैश इनफ्लो 5 इयर्स में है। बट अगर आप देखें इन रियलिटी प्रोजेक्ट 1 हमें रैपिड रिटर्न्स दे रहा है, मींस बहुत जल्दी इनिशियल ईयर्स में ही हमें ज्यादा रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं एज कंपेयर टू द प्रोजेक्ट 2। कैसे? देखिए, प्रोजेक्ट 1 में फर्स्ट ईयर में हम अमाउंट रिकवर हुई 10,000, देन 8, देन 7 एंड 6, देन 4, मींस इनिशियल ईयर्स में हमें ज्यादा अमाउंट रिकवर हो रही है। तो जो मनी हमें आज मिल गई है, एक एक है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद हमें जो मनी मिलेगी इसके बजाय जो आज मनी रिकवर हुई है उसकी वैल्यू ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो प्रोजेक्ट 1 हमें जल्दी मनी रिकवर करा, इनिशियल ईयर्स में हमें ज्यादा कैश इनफ्लोज जनरेट हो रहे हैं। और प्रोजेक्ट 2 में अगर हम देखें, प्रोजेक्ट 2 में इनिशियल ईयर में पहले हमें 4,000 मिले, फिर 6,000 7,000 8,000 और फिर फिफ्थ ईयर में हमें 10,000 जनरेट हुए। मीन्स यहाँ पर कैश इनफ्लोज बाद वाले ईयर्स में हमें ज्यादा जनरेट हुए और जो इनिशियल ईयर्स है उसमें कम जनरेट हुए कैश इनफ्लोज। सो प्रोजेक्ट 1 अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करें, प्रोजेक्ट 1 इज बेटर देन द प्रोजेक्ट 2। लेकिन पे बैक पीरियड मेथड के अकॉर्डिंग दोनों प्रोजेक्ट्स को सेम कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज दोनों 5 इयर्स में मनी पे बैक कर रहे हैं। सो ये मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। It does not take into consideration the cost of capital, which is very important factor in making sound investment decision। यहाँ पर cost of capital को भी consider नहीं किया जाता जब हम investment decision लेते हैं। It may be difficult to determine the minimum acceptable payback period. It is usually a subjective decision। ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिनिमम पे बैक पीरियड को डिटरमाइन करना भी डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ये सब्जेक्टिव डिसीजन है। यह डिसीजन पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, बिकॉज जब एक सिंगल प्रोजेक्ट की हम बात करें तो मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि कितना मिनिमम पे बैक पीरियड होना चाहिए किसी प्रोजेक्ट में मनी इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेने के लिए। तो यह डिसीजन मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है वह किस टाइम पीरियड को मिनिमम पे बैक पीरियड डिटरमाइन करती है। हो सकता है एक पर्सन हायर पीरियड को मिनिमम पे बैक पीरियड डिटरमाइन करे, दूसरा पर्सन उससे कम टाइम पीरियड को मिनिमम पे बैक पीरियड कंसीडर करें। सो एक सब्जेक्टिव डिसीजन है, इट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन और फॉर्म टू फॉर्म। So payback period method does not measure the true profitability of the project, as the period considered under this method is limited to a short period only and not to the full life of the asset। यह मेथड
किसी भी प्रोजेक्ट की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी को भी कंसीडर नहीं करता, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, बिकॉज यहाँ पर यह मेथड लिमिटेड होता है एक शॉर्ट पीरियड तक की। फुल लाइफ ऑफ असेट को कंसीडर नहीं किया जाता कि पे बैक पीरियड के बाद भी हमें कुछ एडिशनल अर्निंग्स जनरेट होती है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता। सिर्फ एक शॉर्ट टाइम पीरियड तक जब तक हमें कॉस्ट रिकवर होती है उसको कंसीडर कर लिया जाता है। जो एडिशनल अर्निंग्स या एडिशनल रिटर्न्स हमें पे बैक पीरियड के बाद जनरेट होते हैं उसको इस मेथड में कंसीडर नहीं किया जाता। So thanks for watching the video. Please subscribe my YouTube channel, like the video and share it with your friends. And please give your comments in the comment box.